Hello students, this is the video on the Awakening India by Vivekanand ji, Swami Vivekanand ji, and here I am going to discuss in brief about this. So that is actually that's a journal Prabuddha Bharat, and here which translates the Awakened India, while the journal itself was started by its disciples under his inspiration. The phrase to the Awakened India by Swami Vivekananda. So here we'll see the Awakened India as embodied by Swami Vivekananda's message and vision. So first is the premise of awakening, the state of India before Vivekananda. Swami Vivekananda keenly observed the state of India in the late 19th century, which he was as one of profound slumber and degrading. India was sleeping, we can say, deeply sleeping, and that is why his vision of awakening, sleeping not physically but unaware and not alert. So India was innocent, or we can say that unawareness, illiteracy, number of reasons were there, but India was not aware, and that's why Swami Vivekananda ji was worried, and his vision of awakening was a direct response to these perceived ills. What he understood, the evils which were prevailing in the society. So first is spiritual decadence, ritualism over realization. So first point is ritualism over realization. Religion had become bogged down in empty rituals, superstition and dogmatism. So Vivekanand ji he was very much worried about India, and then he was thinking that India was what we can say that indulge, right? He was not able to move because India was sunk into muddy ground, right? India was not progressing, so that religion had become bogged down in empty rituals, superstitions and dogmatism, losing its spiritual essence. विवेकानंद जी ने सोचा कि रिलीजन के कारण कास्ट, कस्टम, क्रीड, सुपरस्टिशन इतना ज़्यादा था कि लोग जो एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, जो स्पिरिचुअलिटी थी, दैट सोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी वॉज लॉस्ट समवेयर. तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट रीज़न था कि फर्स्ट रीज़न वॉज दैट इज़ स्पिरिचुअल डिकेंडेंस, राइट. तो उसमें हमने देखा स्पिरिचुअल डिकेंडेंस का फर्स्ट रीज़न वॉज रिचुअलिज्म एंड रियलाइजेशन, है ना. फिर नंबर 2, कास्ट सिस्टम रिजिडिटीज, अभी भी चल रहा है. कास्ट सिस्टम रिजिडिटी अभी भी है, और कंसेंसस और ये सारी चीज़ें जो है वो अभी भी चल रही है, राइट. तो द कास्ट सिस्टम ओरिजिनली based on function had become a rigid birth based hierarchy leading to social fragmentation, oppression and lack of mobility. Caste system at that time and today
when census, we talk about census and all. So still this problem is prevailing. So caste system rigidities में क्या है कि caste system originally based on function had become a rigid birth based hierarchy leading to social fragmentation. caste system के कारण societies were being broken and then operations एक दूसरे को डोमिनेट करना एंड अ लैक ऑफ मोबिलिटी, और उसके कारण दे वर बॉक डाउन, दे वर बिजी इन दीज ट्रिवियल थिंग्स ओनली, जहाँ पे बस वो छोटी छोटी मानसिकता को लेके नैरो थिंकिंग में वही अटके थे, और उसके कारण देयर वॉज नो मोबिलिटी. तो ये एक स्पिरिचुअलिज्म लॉस था. दूसरा, लॉस ऑफ फेथ इन सेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास खत्म होने लगा था. सेंचुरीज ऑफ फॉरेन रूल एंड इंटरनल डिविजन्स हैड लेड टू डीप सीटेड inferiority complex and loss of faith in India's own spiritual heritage. हम दूसरों पे ज़्यादा विश्वास करने लगे थे, और सेंचुरीज ऑफ फॉरेन रूल, क्योंकि कई साल से लोग इंडिया में इन्वेडिंग हो रही थी और पीपल वर रूलिंग इन इंडिया, तो कभी किसी के अंडर में कभी किसी के अंडर में, और बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल डिविजन्स, आपस में लड़ाई वैमिनस ये सब होने लगा, एंड हैड लेड टू डीप सीटेड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और कहीं ना कहीं सबको बहुत ज़्यादा गहरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगा, एंड लॉस ऑफ फेथ इन इंडियाज़ ओन स्पिरिचुअल हेरिटेज. और फिर जब मुसीबतें आती है तो हम सोचते हैं कि ये कास्ट कस्टम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का क्या यूज़ है, व्हाट्स द यूज़ ऑफ इट, और इस तरह से हमारा विश्वास डगमगाने लगता है. दैट वॉज अनदर रीज़न. देन मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदांत. कभी वेदांत को लेके मिस इंटरप्रिटेशन नहीं था, बट द प्रोफाउंड रूट्स ऑफ वेदांत वर ऑफन कन्फाइंड टू स्कॉलरी सर्कल्स और मिस इंटरप्रिटेड, नॉट अप्लाइड टू डेली लाइफ. इतने वेद संहिता, इतना पुराण, जितनी भी मैथोलॉजी बुक्स लिखी गई हैं वो हम सब के लिए लिखी गई है ताकि हमारा कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा हो, आचार विचार अच्छे हों. तो क्या हुआ, द प्रोफाउंड ट्रूथ्स ऑफ वेदांत वर ऑफन कन्फाइंड टू स्कॉलरी सर्कल्स. जो पढ़े लिखे लोग थे वो तो समझते थे, या फिर मिस इंटरप्रेट हुआ उसका, या नॉट अप्लाइड इन डेली लाइफ, या वो फॉलो ही नहीं करते थे. तो दीज वर द रीजन फॉर स्पिरिचुअल डिकेंडेंस, और इस तरह से जो आध्यात्मिकता थी वो ख़त्म हो रही थी. नंबर 2, सोशल एंड इकोनॉमिक डिग्रेडेशन. साथ में क्या हुआ कि सोशल और इकोनॉमिक डिग्रेडेशन भी हुआ. रीज़न था पावर्टी एंड फैमिन, लैक ऑफ एजुकेशन, सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस. तो पावर्टी एंड फेमिन, क्या बोलना चाहिए कि पावर्टी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही गरीबी आने लगती है तब भी हमारा विश्वास डगमगाने लगता है. तो पावर्टी थी, उसके बाद डर्थ या अकाल पड़ा, तो वो भी एक रीज़न था कि पावर्टी भी और अकाल भी. वाइड स्प्रेड पावर्टी, इलिटरेसी एंड रिकरेंट फैमिन्स, और उस टाइम जो भी अकाल सूखा पड़ रहा था, प्लेग्ड द मासेस, और प्लेग, बहुत ज़्यादा प्लेग फैला था, महामारी. तो उसके कारण भी दैट वाज द अनदर रीज़न सोशल एंड इकोनॉमिक डिग्रेडेशन हुआ, है ना. फिर तो इसीलिए उन्होंने लिखा अवेकनिंग, राइट. अवेकनिंग मतलब कि द प्रीमाइस ऑफ अवेकनिंग. क्यों अवेकनिंग? तो अवेकन्ड इंडिया, कि भारत को जागना चाहिए, फिजिकली नहीं, इन सब चीज़ों के साथ में. फिर लैक ऑफ एजुकेशन, अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो दैट एजुकेशन वाज लिमिटेड पर्टिकुलरली फॉर वीमेन एंड द लोअर कास्ट. उनको एजुकेशन ही नहीं मिलती थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि इंडिया वाज नॉट डूइंग गुड दैट टाइम. फिर सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस, ब्लाइंड फेथ एंड इग्नोरेंस
hindered progress. Naturally, बिना रीज़न के अगर हम फेथ करते हैं तो वो हमारी प्रोग्रेस में बहुत बड़ा बाधक बनता है. एंड रैशनल थाट्स, और वी कैन नॉट बी रैशनल, और इट बिकम्स हर्डल इन आर रैशनल थाट्स. तो वो भी वन ऑफ द रीज़न वॉज देयर. दैन डिसयूनिटी, रीजनलिज्म. डिसयूनिटी में क्या हुआ? रीजनलिज्म, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन fostered disunity rather than national solidarity. तो डिसयूनिटी आई, यूनिटी नहीं थी, क्योंकि रीजन अलग अलग थे. लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, लैंग्वेज का प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है. देयर इज़ लैंग्वेज प्रॉब्लम. साउथ इंडिया में तमिलनाडु, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिंदी. मराठी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिंदी. तो ये जो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे तब भी थे. एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और तनाव, सामाजिक तनाव जो अभी भी है, फॉस्टर डिसयूनिटी रादर देन नेशनल सॉलिडैरिटी. तो एकात्म ख़त्म हो रहा था, मतलब एक साथ रहने का जो वो था, नेशनल बॉन्डिंग थी, वो ख़त्म हो रही थी बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स. फिर इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन. क्या था रीज़न? ब्लाइंड लिमिटेशन ऑफ द imitation of the West or lack of scientific temper. Blind imitation of West आज भी है कि हम बिल्कुल जो वेस्ट करता है उसकी नकल करते हैं. एंड अनक्रिटिकल एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़ एंड लाइफ स्टाइल्स. जो आज भी हम वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियाज़ ओन रिच इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन. जबकि दो वी हैव वेरी रिच इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन एंड फ्रॉम everywhere we are much better than others, but still we blindly imitate Western culture, and because of that is uncritical adoption of Western ideas and lifestyle spoils our intellectual what we can say that side. Okay, now lack of scientific temper. Still many don't want to study science subjects. A general aversion or indifference to scientific inquiry and modern knowledge. So that lack of scientific inquiry, we just don't want to discuss, don't want to put our brain, इतने दिमाग को जोर नहीं देना चाहते. That was the reason of intellectual stagnation. तो वहाँ वो थम गया. तो then विवेकानंदा's call to awaken the core message. पहला वाला फर्स्ट इज व्हाट इज दिस? दैट इज स्पिरिचुअल डिकेंडेंस, है ना. तो द प्रीमाइस ऑफ अवेकनिंग द स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर विवेकानंद, ये था, है ना. तो फिर विवेकानंद के पहले भारत ऐसा था जिसमें स्पिरिचुअल डिकेंडेंस था, सोशल एंड इकोनॉमिक डिग्रेडेशन था, फिर इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन था. तब विवेकानंद जी आए तो क्या हुआ? विवेकानंदा कॉल टू अवेकन द कोर मैसेज, कि जागना पड़ेगा, जागो. स्वामी विवेकानंदा's मैसेज फॉर अवेकन इंडिया वॉज मल्टी फेसेटेड. एक साइड नहीं था, उन्होंने मल्टी फेसेटेड, एमिंग एट द कंप्लीट ओवरऑल ऑफ नेशनल साइके, कि पूरी ओवरऑलिंग करनी पड़ेगी नेशनल साइके, पूरे देश की, एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर भी बदलना पड़ेगा. It was a call to action, to self-realization and to national regeneration. तो एक्शन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. टू सेल्फ रियलाइजेशन, हमारी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करना पड़ेगा. एंड टू नेशनल रीजनरेशन, और देश को फिर से नया तरीके से खड़ा करना पड़ेगा. तो व्हाट डिड ही डू? द डिविनिटी ऑफ एवरी सोल, प्रैक्टिकल वेदांत. उन्होंने प्रैक्टिकल उसकी प्रैक्टिसेस बताई वेदांत की. तो डिविनिटी ऑफ एवरी सोल पहला था सेंट्रल टेनेट, एंड सेकंड वन इज इम्प्लीकेशन. तो उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले उन्होंने
सेंट्रल theories, दिस प्रिंसिपल सेट ऑफ प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन, सेंट्रल टेनेट मतलब सिद्धांत. हिज फंडामेंटल मैसेज वॉज ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन. हर शरीर में आत्मा बसती है, शुद्ध आत्मा. द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. और गोल क्या था? टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी, कि इस डिविनिटी को बाहर लाओ, विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. तो सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा. ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, यह हमें याद रखना पड़ेगा. एंड देन द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी, कि इस डिविनिटी को मेंटेन करना विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरीके से सुधार करना पड़ेगा. फिर इम्प्लीकेशंस. दिस वॉज नॉट जस्ट अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट बट अ रिवॉल्यूशनरी कॉल फॉर सेल्फ बिलीव. सबसे पहले ये सिर्फ उन्होंने कहा इसको इम्प्लीकेशन करो, इसको प्रैक्टिस में लाना है. तो ये सिर्फ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट या रिवोल्यूशनरी कॉल नहीं था, बट की सेल्फ बिलीफ है या डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट फॉर सिंगल इंडिविजुअल irrespective of caste, creed and gender. This was the appeal from Vivekananda: self-belief, dignity and empowerment. And it demolished the basis for any form of oppression or inferiority. और क्या हुआ जब वो आने लगी लोगों में, तो फिर basis for any form ऑफ ऑपरेशन और इन्फीरियरिटी, मतलब धीरे धीरे वो इन्फीरियरिटी ख़त्म होने लगी. लोग अच्छा फील करने लगे. फिर एप्लीकेशन. वेदांत वॉज नॉट टू रिमेन इन फॉरेस्ट और केव्स बट टू बी अप्लाइड इन डेली लाइफ. तो वो सिर्फ जंगल में साधु संत का वेद से लेना देना नहीं था, बल्कि लोगों की लाइफ में, डेली लाइफ में उसको प्रैक्टिस में लाना था. इन सोशल इंटरेक्शंस एंड इन नेशनल बिल्डिंग, और समाज के लिए और देश के लिए वो बहुत ज़रूरी था. देन मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग. तो उसमें हमें मनुष्यता लाना पड़ेगी, कैरेक्टर को बचाकर रखना पड़ेगा. तो स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस. ही एम्फेसाइज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. तो उन्होंने फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, मेंटल भी चाहिए और स्पिरिचुअल भी चाहिए. बी स्ट्रॉन्ग माई यंग फ्रेंड्स, दिस इज माई एडवाइस टू यू. यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ गीता. उन्होंने कहा कि आप, बहुत अच्छा मैसेज दिया कि यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल, कि जितनी तेज फुटबॉल पैर से उछालोगे किस से ज़्यादा, देन थ्रू स्टडी ऑफ द गीता. गीता पढ़ो, आपको वो हेवन में ले जाएगी, मतलब आप लाइफ को सच में समझ पाओगे. दिस वॉज द टू शेक ऑफ लेथार्जी, नॉट डिवैल्यू स्क्रिप्चर्स, राइट. तो उन्होंने कहा, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उनका. एंड दिस वॉज टू शेक ऑफ लेथार्जी. तो जो लोग बहुत आराम तलब थे उनको एक बहुत बड़ा झटका था. नॉट डिवैल्यू स्क्रिप्चर्स, कि इतना अच्छा स्क्रिप्चर हमारे पास है, उसकी वैल्यू करो, उसको प्रैक्टिस में लाओ, ऐसा उन्होंने समझाया. देन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलाई. हिज टीचिंग्स वर डिज़ाइन टू इंस्टिल इमेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस इन इंडियन. सबसे पहले खुद पर विश्वास, टू रिलाई ऑन देयर ओन इनर स्ट्रेंथ, खुद के ऊपर विश्वास, एंड यूनिक जीनियस. और हम सब में कुछ ना कुछ है, तो वी हैव टू बिलीव इन दैट, राइट. तो खुद पर विश्वास, खुद की स्ट्रेंथ पर भरोसा. उसके बाद मॉरल करेज, टू स्टैंड अप फॉर ट्रूथ, जस्टिस एंड राइटसनेस. हम झूठ कभी कभी तब बोलते हैं जब हम
सच को फेस नहीं कर पाते, उसके रिपरकशन हमें लगता है कि कोई हमें डांटेगा, चिल्लाएगा, या उसके कारण हम लॉस में चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि टू स्टैंड फॉर ट्रूथ, खड़े होना सच के साथ, जस्टिस को के लिए खड़े होना, राइटसनेस के लिए, इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। और जब आप एडवर्सिटी में भी इन सब चीज़ों के साथ खड़े हुआ तो आपका मॉरल करेज दिखता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। दैन सर्विस टू ह्यूमैनिटी, तो उन्होंने डेरिडा नारायण सेवा, दरिद्र नारायण सेवा में बताया कि वर्शिप ऑफ गॉड इन मैन, राइट। तो हमें भगवान की पूजा करना है तो भगवान हर मनुष्य के अंदर समाया हुआ है, वही भगवान है। ही फेमसली आर्टिकुलेटेड द कॉन्सेप्ट दरिद्र नारायण, नारायण भगवान, दरिद्र है, कम गरीब है, सीइंग गॉड इन द पुअर, द सफरिंग एंड द डाउन ट्रॉडन। भगवान किसके अंदर है? तो वो गरीब सफरर के पास है, या जिनको कुचला दबाया जा रहा है उनमें भगवान बसता है, विच इज़ दरिद्र नारायण, है ना। फिर उन्होंने कहा एक्शनेबल कंपैशन, एक्शनेबल कंपैशन, सर्विस टू ह्यूमैनिटी वॉज नॉट मियरली चैरिटी बट अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी एक सिर्फ चैरिटी के लिए नहीं करना है, वो पूजा की तरह करना है, a part of a spiritual realization. This was a radical shift from passive piety to active social engagement. और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उसको रियलाइज़ करना है, और इससे बहुत फ़र्क आया लोगों में। फिर एजुकेशन फॉर मासेस, ही एडवोकेटेड फॉर एजुकेटिंग द मासेस, सबको पढ़ाना है, पर्टिकुलरली वीमेन एज द की ऑफ नेशनल अपलिफ्टमेंट। वो सबसे बड़ी शक्ति जो है वो नारी शक्ति है। इफ़ यू वांट टू फाइंड गॉड सर्व मैन, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको भगवान को पाना है तो लोगों के लिए काम करो, राइट। एंड देन सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, स्पिरिचुअल ईस्ट एंड मटेरियल वेस्ट। Vivekanand believed that India had a spiritual message to offer the materialistic West. West में सब कुछ materialistic है, short lived है, छोटे, हाँ, मतलब उनकी थिंकिंग जो है वो बहुत सुपरफिशियल है, जो वो ब्यूटी और मनी और पावर और इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो जिसकी लाइफ स्पैन बहुत कम है। एंड द वेस्टर्न हैड लेसन्स इन साइंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रैक्टिकल एफिशिएंसी फॉर इंडिया। लेकिन वेस्टर्न की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, दे आर लॉजिकल, साइंटिफिक, उनका ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ऑर्गेनाइज एंड प्रैक्टिकल एफिशिएंसी, और उनके पास बहुत सारा प्रैक्टिकल एफिशिएंसी है विच शुड बी लर्न फ्रॉम दैम। फिर हारमोनियस डेवलपमेंट, हिज विजन was for a new India that would combine the spiritual depth of East and scientific temper and social organization of West। तो हमें उनकी अच्छी चीज़ों को लेना है, scientific temper and social organization can be learned from West, and इस इंडिया से spiritual depth can be learned, and this is the good combination, and this will give us development, real development. This was not blind limitation but a conscious assimilation of strength. Then universality, he preached the universality of religion, मेरा religion आपके religion से, हमारा religion is universality, the inherent harmony that underlined the faith, and saw this as India's special gift to the world. Then nationalism on a spiritual basis, उसमें उन्होंने spiritual patriotism की बात की, unity and organization and aggressive Hinduism। तो इस तरह से और भी है इसमें, अभी मैं इतना ही बना रही हूँ बिकॉज टुडे आई हैव टू गो समवेयर। नहीं बन पाएगा।